Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we're going to discuss chapter number 7 जो है history and sport, the story of cricket, and आज का जो session है वो है session number 4. So in this session we are going to discuss about the spread of cricket. While some English team games like hockey and football became international games played all over the world, cricket remained a colonial game limited to countries that had once been part of the British Empire. जो वाइल सम जो इंग्लिश टीम गेम्स थे जैसे कि हॉकी था या फुटबॉल था वो इंटरनेशनल गेम्स बन गए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको खेला जाने लगा क्रिकेट जो है दैट रिमेन्ड कॉलोनियल गेम इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं कंट्रीज तक लिमिटेड रहा जिनके ऊपर जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने राज्य किया था और दे वर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. The pre-industrial oddness of cricket made it a hard game to export. It took root only in countries that the British conquered and ruled. So जो pre-industrial oddness of cricket थी उसकी वजह से ये जो एक गेम था वो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल था. सो दैट इज़ वाई इसकी जो रूट्स थी वो उन्हीं कंट्री में हो पाई जिन कंट्रीज में ब्रिटिश उन्होंने कॉन्कर करके फिर उन्होंने रूल किया. In these colonies, cricket was established as a popular sport either by white settler, as in South Africa, Zimbabwe, Australia, New Zealand, the West Indies, and Kenya, or by local elites who wanted to copy the habits of their colonial masters, as in India. तो ये जितनी भी कॉलोनीज थी जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी जहाँ जहाँ बनाई थी वहाँ पे क्रिकेट जो है वो स्टैब्लिश हुआ एज अ पॉपुलर स्पोर्ट आइदर कि उनको वाइट सेटलर्स जो थे वो खेलते थे तो उनके द्वारा वहाँ पे वो गेम आया और बाय लोकल एलिट्स जो थे और जो दे वांटेड टू बिकम लाइक ब्रिटिशर्स. जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो दे लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू बिकम लाइक ब्रिटिशर्स उनको कॉपी करना चाहते थे वट एवर दे हैबिट्स वर so they were copying them and that was one of the thing that they used to play cricket. So this is what happened कि उन लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू किया and that's how इंडिया में क्रिकेट खेलना शुरू हुआ. While British imperial officials brought the game to the colonies, they made little effort to spread the game, especially in colonial territories where the subjects of empire were mainly non-white, such as India and the West Indies. तो while Britishers जो हैं जो British imperial officials थे वो गेम लेके तो आए colonies में. So they brought the game to the colonies, but they didn't make a lot of effort to spread the game. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया कि वो गेम को स्प्रेड करें लोगों में. स्पेशली जो वो कॉलोनीज थी जो स्पेशल कॉलोनियल टेरिटरीज थी जहाँ पे जो उनके सब्जेक्ट थे जिन पे दे यूज टू रूल वो जो थे वो नॉन वाइट थे जैसे कि इंडिया में नॉन वाइट लोग थे एंड ऑल्सो वेस्ट इंडीज में. तो उन्होंने वहाँ पे दे डिडंट ट्राई वेरी हार्ड टू स्प्रेड द गेम एंड टू play the game with the people and to let them know about the game. So all these things they didn't try to spread the game. उन्होंने बहुत ही कम effort किया कि वो गेम को spread करें and especially जहाँ पे non-white लोग थे. Here, playing cricket became a sign of superior social and racial status, and the Afro-Caribbean population was discouraged from participating in organized club cricket, which remained dominated by white plantation owners and their servants. So, यहाँ पे जो क्रिकेट खेलना था तो वो एक ऐसा माना जाने लगा कि इफ़ यू प्ले क्रिकेट देन यू आर सोशली एंड रेशियली आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा ऊपर है. एंड द एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन थी उसको डिस्करेज किया गया कि वो पार्टिसिपेट करे ऑर्गेनाइज जो क्लब क्रिकेट है उसमें. ऑर्गेनाइज क्लब क्रिकेट में उनको जाना अलाउड नहीं था उनको डिस्करेज करा जा रहा था एंड विच रिमेन जो डोमिनेटेड उसको कर रहे थे जो लोग डोमिनेट करते थे उसको वो थे रिच जो वाइट प्लांटेशन वर्कर थे या प्लांटेशन ओनर्स थे एंड ऑल्सो उनके जो सर्वेंट थे वहाँ पे. Despite the exclusiveness of the white cricket elite in the West Indies, the game became hugely popular in the Caribbean. Success at cricket became a measure of racial equality and political progress. Despite जो exclusiveness थी white cricket elite की West Indies में कि उन्होंने spread करने की कभी कोशिश नहीं करी उस game को. So जो exclusiveness
थी कि वही लोग खेलते थे उसको, जो गेम है फिर भी वहाँ पे एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया कैरेबियन में। एंड सक्सेस एट क्रिकेट बिकेम अ मेजर ऑफ जो रेशियल इक्वालिटी है एंड ऑल्सो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है। At the time of their independence, many of the political leaders of Caribbean countries like Forbes Burnham and Eric Williams saw in the game a chance for self-respect and international standing. तो at the time of independence जो था, बहुत सारे जो political leaders थे Caribbean countries के, लाइक उनमें से कुछ हैं फोर्ब्स बर्मन एंड एरिक विलियम, उन्होंने ये देखा कि गेम में एक चांस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी है इस गेम में। When the West Indies won its first Test series against England in 1950, it was celebrated as a national achievement as a way of demonstrating that West Indies were the equals of white Englishmen. There were two ironies to this great victory. तो जब वेस्ट इंडीज ने गेम विन किया फर्स्ट सीरीज जो थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1950, तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग कि वो उनके खिलाफ जीते जो इंग्लिशमैन हैं। तो जो ये विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट किया गया एज अ नेशनल अचीवमेंट के तौर पे, एज अ वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट जो ईस्ट इंडियंस थे वो इक्वल्स थे वाइट इंग्लिशमैन लोगों के। और ये जो ग्रेट विक्ट्री थी उसकी टू आयरनीज थी जो हम लोग आगे देखते हैं। One, the West Indies team that won was captained by the white player. The first time a black player led the West Indies Test team was in 1960 when Frank Worrell was named captain. And two, the West Indies cricket team represented not one nation but several dominions that later became independent countries. So सबसे पहले तो जो वेस्ट इंडीज टीम थी जो जीती ये गेम, दैट वाज कैप्टन बाय अ वाइट प्लेयर, तो एक वाइट प्लेयर जो थे वो उसके कैप्टन थे। एंड द फर्स्ट टाइम जो एक ब्लैक प्लेयर जो था उन्होंने लीड किया वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम को, वो कब हुआ? वो हुआ 1960 में व्हेन फ्रैंक वरेल जो थे वो कैप्टन उनको बनाया गया। एंड टू द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया ना केवल एक नेशन को बट सेवरल डोमिनियन को, जो बाद में मिलके जो बाद में इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। Cricket fans know that watching a match involves taking sides. In a Ranji Trophy match, when Delhi plays Mumbai, the loyalty of spectators depends on which city they come from और सपोर्ट। तो क्रिकेट के फैन जो है वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा when you watch a cricket match then you have to take someone's side. Either you are on one side or you are on other side, so you have to take sides that involves in the match। तो रणजी ट्रॉफी मैच में अब हम लोग देखें व्हेन दिल्ली प्लेज मुंबई, जब दिल्ली और मुंबई का गेम होता है देन लॉयल्टी जो थी स्पेक्टेटर्स की वो डिपेंड हो जाती है कि किस सिटी से वो आ रहे हैं। So wherever they were born or wherever they lived, तो जो सिटी उनकी होती है तो उस हिसाब से वो उस सिटी का साइड लेते हैं। When India plays Australia, the spectators watching the match on television in Bhopal or Chennai feel involved as Indians. They are moved by nationalist loyalties. जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं जो मैच देख रहे होते हैं ऑन टेलीविजन इन भोपाल या फिर चेन्नई में, वो इन्वॉल्व होते हैं एज इंडियन। तो वो किस चीज़ से मूव होते हैं? वो मूव होते हैं जो नेशनलिस्ट लॉयल्टीज हैं उनसे। But through the early history of Indian first class cricket, teams were not organized on geographical principles, and it was not till 1932 that a national team was given the right to represent India in a test match. तो बट थ्रू जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है, तो टीम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं थी ऑन जियोग्राफिकल प्रिंसिपल जो है। एंड टिल इट वाज नॉट अंटिल कि 1932 तक कि एक नेशनल टीम जो है उसको ये राइट दिया गया कि वो रिप्रेजेंट करे इंडिया को एक टेस्ट मैच में। So that's all we have discussed in this session about cricket. Thank you.